एनालिसिस वी विल लुक कि क्या क्या पूछता है और क्या क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर द मेजर ट्रेंड्स. इफ यू कैन सी हियर, दिस वाज इन 1979 टू 1988. जब हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे तब से यूपीएससी है. एंड इट्स लाइक कि 18 क्वेश्चन वाज द एवरेज इन दैट 10 years. They were used to asking the 18 questions from the modern India itself. Then after next 10 years, this decreased it to the 15, 16 questions. Then after 10 years, they decreased it to the 12 to 14 questions. And now, in the last 10-year average is 8 questions. But in 2022, they are only the 4 questions. तो इस तरीके से ग्राफ अगर हम देखें तो इट्स अ फॉलिंग ग्राफ की number of the question of the modern India is starting decreasing and the number of medieval India is starting increasing. If we see the 2018, 2019 question paper, the medieval India question is 1 or 2. But if we see the 2020, 21, 22, it's a 4, 5, 6 questions from the medieval India. So these are the 3 main personality I found. This is show the extremist phase, this show the Gandhian phase, and this show the All East India Company. So whenever जिसका कोई strong part था 2022 में, he very strong on the modern India. And see the 4 question. भाई ये क्या हो गया? कितना टाइम मैंने वेस्ट किया. मैंने विपिन चंद्रा पढ़ी, प्लासिडो पार्टीशन पढ़ा, मैं थीम्स भी पढ़ा, मैंने स्पेक्ट्रम भी पढ़ा. क्वेश्चन आए 4 में से 2 मुझे आते भी नहीं थे फिर भी. एंड व्हाट्स द गो बियॉन्ड द मल्टीपल सोर्सेस. जब आपको पता है, इफ यू आर रीडिंग अ सिंगल सोर्स यू कैन अटेम्प्ट द 90% ऑफ द क्वेश्चंस. क्यों हमें मल्टीपल पे भागना है? उसको ही हम बार बार पढ़ेंगे. इफ दे आर द 10 क्वेश्चन फ्रॉम द मॉडर्न, तो 8 से 9 क्वेश्चन आप उन सोर्सेज से कंप्लीट कर सकते हो अगर आप उसको अच्छे से पढ़ रहे हो, rather than कि आप 4 सोर्सेज फॉलो कर रहे हो और 4 सोर्सेज में आपको याद कुछ भी नहीं है. सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टाइम 3 महीना लगाए बेचारे ने मॉडर्न इंडिया पढ़ने में. क्वेश्चन आई 4 में से 3 भी नहीं हो रहे थे उससे. So this kind of situation you will face in the examination. Yesterday a student came to me. He was reading art and culture from the last 3 months. I told it's not the art and culture paper, it's a paper of the all the subject. कि आप 3 महीने से आर्ट एंड कल्चर ही पढ़े जा रहे हो कि सर मुझे आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन सही करने. तो कितना भी पढ़ लो, 2 से ज्यादा तुम कर ही नहीं सकते हो. 5 से 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा तुम कर ही नहीं सकते हो. तो why you are investing so much time in those subjects जहां पे रिटर्न है ही नहीं. And the person like me who are focusing on a one subject, one book, then it's like a 2021 8 questions and it's you can attempt the more than 6 questions. And their dancings like and their confidence in the examination is increased. Whenever you see कि आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए और आपको आते भी हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका हार्मोन लेवल एग्जाम में हाई हो जाता है. जो मार्किंग द क्वेश्चन करेक्टली, वहां पे आपके क्वेश्चन ठीक होना भी शुरू हो जाते हैं क्योंकि एक कॉन्फिडेंस लेवल पे आप होता है कि ये ठीक तो ठीक होगा ही. तो ये सिचुएशन हमें क्रिएट करनी है एग्जाम में, इससे हमें बचना है. और बचने का तरीका यही है, मिनिमलिस्टिक सोर्स, मैक्सिमम रिवीजन एंड फोकस ऑन द पीवाईक्यू. क्या ट्रेंड से पूछा गया है, व्हाट आर द हाउ द स्टेटमेंट दे आर फ्रेमिंग. दे आर फ्रेमिंग द स्टेटमेंट वेरी ट्रिकी. डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं, ट्रिकी स्टेटमेंट्स बना रहे हैं. 3 स्टेटमेंट पर 3 अलग अलग टाइम पीरियड से भी देखा आप लोगों ने है. And some of the direct question, I can say the 50 to 60% question are direct. It may be from the act, it may be from the newspaper, it may be from the like books जो उन्होंने रिलीज करी, it may be from the economic policy of the British India, maybe the education policy, maybe the press policy, or maybe the social reformers part. So these are some of the important topics of the modern India. So I divided the modern India here in 13 parts. Before going to that, let's see, look at the 2022 question and the 2021 questions. So these were the first questions. In the Government of India Act, the function of provincial government were divided into reserved and the transfer subjects. Which of the following were treated as a reserved subject? If you see in the 1919, it's a highlight of the act. It was a major highlight of the act. If you're missing this highlight, means you are not going according to the preparation जो requirement है exam का. 1919 में and even in the 1935 में भी like sometime डायरेक्टली कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, लोअर हाउस अपर हाउस. तो वहां पे आपको पूरा फोकस करना है क्या है रिजर्व सब्जेक्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स आए हैं, लाइक की ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स आए हैं. तो वी कैन सी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, लैंड रेवेन्यू एंड द पुलिस. तो इसमें से क्या क्या सब्जेक्ट आ सकते हैं. पुलिस को आपको पता होगा ब्रिटिश अपने पास ही रखेगा, तो दैट कैन बी इन द रिजर्व सब्जेक्ट कि हाँ हम अपने पास ही रखेंगे. देन द ट्रांसफर सब्जेक्ट्स की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रेवेन्यू को भी नहीं देंगे, वो पैसा तो हमें देना ही नहीं है.
So it can be eliminated 3 and 4. यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस में ही है 3 and 4. ऐसे भी आप उनको एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन नहीं है. यू कैन थिंक ऑन अ पर्सपेक्टिव की ब्रिटिश का पर्सपेक्टिव क्या था एग्जैक्टली, तो वहां से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. देन अबाउट द कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स एंड हु इज रिलेटेड टू द गदर पार्टी. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. गदर पार्टी से कौन कौन रिलेटेड था ये आपको डायरेक्टली सोल्व हो जाना चाहिए. तो देखते ही इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन जो आपको देखते ही मार्क करने होते हैं. इट्स अ करेक्ट आंसर. Then the question with reference to the Cripps mission. Time period after the 1942, there are the 4 to 5 mission जो आए थे. उन 4 to 5 mission में there is some overlapping. एक ने प्रोमिस किया, दूसरा भी प्रोमिस कर रहा है, लेकिन थोड़ा अमेंडमेंट करके प्रोमिस कर रहा है उसी चीज को. तो वो डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए कि क्या मेजर डिफरेंशिएशन है, क्रिप्स मिशन में क्या डिफरेंशिएशन है, वेवल प्लान क्या है, माउंटबेटन प्लान क्या था. तो इन सब चीजों में आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई इसमें ये स्पेसिफिक 6 पॉइंट्स है, इसमें स्पेसिफिक 5 पॉइंट्स है, इसमें स्पेसिफिक 4 पॉइंट्स है. मेक अ टेबल फॉर द ऑल द 5 मिशंस, मेक अ टेबल एंड राइट द ऑल द 5 पॉइंट्स. तो कभी भूलोगे नहीं कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है. व्हेनेवर यू रीडिंग, जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो तो वो इमेज हमारे सामने आती है कि ये पॉइंट पहले वाले में, ये पॉइंट दूसरे वाले में, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग. तो वो एक ट्रिक होती है कि आप उसको इजीली याद रख सकते हैं. देन इन 2021, this was from the advent of the Europeans when they enter in the India, in the Dutch. So this part is also become the important. Now they are focusing on this part. In 2021, total 8 questions were asked. First question was in the first quarter of the 17th century, which of the following was the factories of the English East India Company located? तो सबसे पहली फैक्ट्री उन्होंने कहाँ बनाई? If you read the Bipin Chandra NCERT, old NCERT, this is the clearly mentioned there. So modern India में geography में the NCERT play a very important role. Even in the polity, there are 2 NCERT in the polity which are playing a very important role in a question paper. Out from those NCERT, 2 to 3 questions you can find. The philosophical driven questions from the second part of the polity in the 11th class, तो वहां से पूछे जाते हैं. With reference to the Madanpalli of the Andhra Pradesh, which of the following statement is correct? It is, I can say it's a hard question. Directly आप इसको नहीं पढ़ा होगा in your books, in your spectrums, but later on they added like a UPSC asking, and so they are adding and adding in the concept in their books. But this type of question you need to think कि आप link करके उसको कर सकते हैं कि time period अगर आपको पता है तो you can link that कि हाँ इस time period पे रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने ये किया था, तभी सीताराम मैया का नाम सबने सुना है, तो उन टाइम पीरियड पे वो थे. तो उस तरीके से आप उसको लिंक करके एलिमिनेशन के ट्रिक में जा सकते हैं. rather than you can attempt this question in the second round instead of the first round. In the first round you can directly skip this question, move on. Then consider the following statements about the Saint Francis Xavier was one of the founding member of the Jesuit orders. Saint Francis Xavier died in the Goa. Church dedicated him. ये भी I can say it's a hard question. अगर किसी ने इस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा है, neither you can eliminate, और आप बता भी नहीं सकते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या होगा. Consider the following. Again the easy question. Montagu-Chelmsford reforms in 2022 they also asked the question in the 1919, and same question they are also asking in the Montagu-Chelmsford reforms and the Government of India Act 1935. The first statement is saying the Montagu-Chelmsford reforms of the 1990 recommending granting voting right to all women. ऐसा तो हुआ ही नहीं था कभी, तो all वाला तो कभी हुआ ही नहीं था. So you can directly come to this statement is wrong. Then with reference to the 8 August 1942 in the Indian history, Quit India movement, Quit India resolution, तो टाइमलाइन से देख लेते हैं. The Viceroy Executive Council was expanded for include, ये पहले ही हो चुका था. The Congress minister resigned in the 7th province, ये बाद में हुआ है उसके. Cripps proposed the Indian Union with the full dominion status once the Second World War was over. तो मोस्ट सुटेबल जाएगा कि 1942 में सबसे बड़ा इवेंट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट. तो यहां से आप इसको जा सकते हैं. अगर आपको टाइमलाइंस भी मॉडर्न इंडिया में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, इफ यू नो द टाइमलाइन, क्या पर्सनैलिटी किस टाइमलाइंस पे थी, क्या क्या मेजर इवेंट्स किस टाइमलाइन पे हुए हैं, दैट इज नीड टू बी रिमेंबर हियर. द सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन डायरेक्टली फ्रॉम द गांधी जी हिस्ट्री. गांधी जी सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन इज फेमस. Then it's a very education, Hindu female school and the Bethune female school by the Ishwarchandra Vidyasagar. This was there. Then in the context of the colonial India, Shah Nawaz Khan, Prem Kumar Sehgal and the Gurbaksh Singh Dhillon. 1946 में अगर आप टाइम पीरियड पे जाओगे, अगर वहां से थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे तो you will find some context there. तो वहां से this question can be solved.
So overall I can say the 70% question are from the easy to medium, जहां आपका गलत नहीं होना चाहिए. In 30% question, you need to think on the timeline basis. You need to think the major event at that time. So you, out of 3, you can also attempt those 2 questions. Means the 90% of the question you can attempt in a modern India paper. If you're looking very like a very जो आपका skills हैं देखने का questions को कैसे skip करना है, कैसे attempt करना है, that's become the important here. So overall trend modern India का यही रहा है, but 2020 paper if we see is a more on the difficult side. Modern India का 2020 का पेपर देखें, it was more on the difficult side. Some question was asked that was not given in the books. कुछ अलग ही बुक से उन्होंने उठाए थे, तो ऐसा भी हो सकता है, बट मेजरली दे आर मेकिंग अ पेपर, बैलेंस पेपर होता है. इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही हार्ड होगा. इन द पेपर यू विल फाइंड द 40-45 क्वेश्चन अटेम्प्टेबल. जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी है वो कैन अटेम्प्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, एंड देन द स्मार्ट गेसेस विल वर्क. So I divide the questions, so complete modern India in these phases in your sheets as well. There are some timeline also given. The time period is also given. If you see this sheet, in this sheet you already have in this the same categories there. The scenario before the 1857 means the advent of the European, we can say. Advent of European say 1857 के time period में, I can say in 2010 to 2020. This is the question number from 2010 to 2020. Before 1857 means advent of Europeans हैं, उसके बाद जो मराठावास हुए हैं, मैसूर वार हुए हैं, उनमें से ओवरऑल लास्ट 10 ईयर में 10 ही क्वेश्चन आए थे. लेकिन in 21-22 the weightage is increasing. Revolt of 1857 all time favorite, एक क्वेश्चन आ जाता है, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन रिलेट करके आ जाता है. Sometime like 2019 से पहले तो कंपल्सन था कि आएगा ही ये क्वेश्चन, बट 21 में नहीं है, 22 में भी नहीं है. And the struggle for Swaraj is the time period given there. Struggle of Swaraj का time period यहाँ पे है. It's 1917 to 1929. So there are the 5 questions there. Intimation of freedom. Intimation of freedoms, the like the we can say कि during the freedom struggle time period, this is 1930 to 1940 time period. This is we can include these one and this one in the same. So overall 30 questions from this time period, 1930 to 1940. 1930 to 1940, it's a Gandhian phase, we can also say. Like the Gandhi entry and the major movements in this phase, we can say. So this is the important part in this area. Then the Congress session, sometime they are given the direct in the like a 15-16 में direct पूछा था उन्होंने Congress session के बारे में. But now also the important, some of the important Congress session, who presided? और कुछ सेशन में क्या हुआ था. लाइक वी कैन से द लाहौर सेशन में मेजर क्या क्या राइट्स आए थे, क्या क्या किया था, किसने किया था. लाइक इवन द 1917 सेशन जहां पे कांग्रेस को मर्ज हुआ 16-17 के टाइम पे, दैट्स आल्सो बिकम द इंपॉर्टेंट वन. सिमिलरली द एक्ट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द 21-22 weightage is increased, but it's considered that they will ask one question from that, कि हर बार एक क्वेश्चन एक्ट से पूछते ही हैं. Similarly the personality and the newspaper and the books all are having a actually the one question each and every time कि एक question पूछा जाता है. So this is the overall weightage of the topics they are asking. तो आप देखेंगे कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहां से पूछ नहीं रहे हैं. मॉडर्न इंडिया की टाइमलाइन में आपको बताऊं, 1600 से 1947 के बीच में कुछ एक ऐसा पीरियड है कि जहां से पूछा नहीं है कभी भी. लाइक कि 1895 से 1905 के बीच का जो छोटा पीरियड है जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद से बहुत कम एरिया है जहां से कभी पूछा होगा. लेकिन बाकी जगह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो वी कैन नॉट रिलाई कि वी विल ओनली रीड द गांधीयन फेज और उससे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, और वी विल स्किप द एडवेंट ऑफ यूरोपियन, हम उससे क्वेश्चन कवर कर लेंगे. तो ऐसा तो नहीं हो सकता. तो वी शुड रीड ट्वाइस ऑल द थिंग्स, बट मेजरली फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर ट्रेंड जहां से क्वेश्चन पूछे हैं, ताकि इफ द क्वेश्चन इफ द यूपी शिफ्टिंग देयर साइड्स, सो देयर विल बी नो सरप्राइज एलिमेंट इन द पेपर कि हमने तो ये किया ही नहीं और वो आ गया. तो वी कैन नॉट डू दिस. इफ यू सी इट्स अ ग्राफिकल पर्पज कि सबसे पहला सबसे ज्यादा एरिया अगर इफ यू सी द ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल 1929 टू 1940 एरिया सबसे ज्यादा है. देन वी कैन सी कि रिवोल्ट से 2010 to 2019 there was a question, so it's become actually the every time there was the one question from the revolt. Similarly in we can say the viceroy, governor, press, education, newspapers and the personality, एक एक क्वेश्चन सबसे.
एक क्वेश्चन almost they are asking the one question they can ask in maybe on the alternate year, maybe after the 2 years, but they are asking the question. It's not like they're skipping the complete topic of the viceroy, they're skipping the complete topic of the governor, they're skipping the complete topic of the present education reform. We cannot say, क्योंकि अल्टरनेट ईयर पे वो पूछे जा रहे हैं, रेगुलर ट्रेंड्स नहीं है, लेकिन अल्टरनेट ईयर पे या 1-2 साल बाद रिपीट हो रहा है वो ट्रेंड्स, लाइक एडवेंट ऑफ यूरोपियंस 14 से पहले पूछते थे, लेकिन अभी 21-22 में दोबारा पूछना शुरू कर दिया, तो वी कैन से लुक इनटू इट. So this is the overall trend of the last 10 year 2010 to 2020 and 21 and 22 का हमने देखा. 21 and 22 को दोनों को मिला के 12 क्वेश्चंस हैं and 2010 to 2020 को मिला के टोटल 87 क्वेश्चंस हैं. If I add up total 99 question in 12 year. 99 question in a 12 year means on an average there are the 8 question from the modern India. So out of these 8 question you should attempt more than 6 question correctly. अगर आपको पेपर को सेफ साइड में लेके जाना है ना, तो पॉलिटी में 90% करेक्ट चाहिए. सिमिलरली इन ज्योग्राफी एक्सेप्ट द करंट अफेयर पार्ट आई कैन से कि 70 to 80% एरिया करेक्ट होना चाहिए, बिकॉज बिलोंग टू द बेसिक वन. सिमिलरली इन इकोनॉमी इट्स अ कंसेप्ट ड्रिवन सब्जेक्ट. एक बार कंसेप्ट समझ आ गया तो 80 to 85% क्वेश्चन आप करेक्ट कर सकते हैं. अगर इस एरिया पे पकड़ बनाते हो तो 35 से 40 क्वेश्चन का आप पे पकड़ है, मींस कि 40% ऑफ द पेपर इन योर हैंड्स. देन करंट अफेयर बच गया, साइंस टेक बच गया, एनवायरमेंट बच गया, आर्ट एंड कल्चर, मिडाइवल इंडिया, ये सब बच गया. तो उसमें से हमें 20-25 क्वेश्चन निकालना है. तो इस तरीके से स्ट्रेटजी में जाओगे, यार इस सब्जेक्ट तो मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो इससे गलत होना ही नहीं चाहिए. तो इस तरीके से हमें जाना पड़ेगा पेपर का अटेम्प्ट करने के लिए. एंड इन टेस्ट सीरीज व्हाट इज द मेन थिंग, कैसे अटेम्प्ट करना है, व्हाट इज योर मेजर वीकनेस क्या है, व्हाट इज मेजर स्ट्रेंथ क्या है, क्या पढ़ लिया है पहले टेस्ट के लिए, क्या स्किप हो गया है, क्या आप अपने ऊपर 100% तक व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द टेस्ट, नई लर्निंग क्या है टेस्ट से. जो आपके साथ शीट शेयर है, मेजर इंडिविजुअल शीट शेयर है, उसका मोटो ही यही है, जब आप अप्रैल के मंथ में होंगे तो आपका पूरा हाईलाइट होगा. ज्योग्राफी में ये पार्ट बचा है, ये वीक है, ये आइडेंटिफाई, ये न्यू टॉपिक आइडेंटिफाइड है. पॉलिटी में ये पार्ट वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसको बाद में देखेंगे, वीक को पहले देखेंगे. बट दिस इज अकॉर्डिंग टू यूपीएससी दिस इज द लेस इंपॉर्टेंट. So I will focus on the more important part, that is the polity. तो फर्स्ट कॉलम इस 10 year PYQ में से क्या क्या मेजर टॉपिक हाईलाइट हुए, उसमें यस नो नहीं लिखना, उसमें टॉपिक लिखना है कि हाँ ये टॉपिक हाईलाइट हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सिमिलरली इन द मॉडर्न इंडिया यू विल आइडेंटिफाई, ये टॉपिक्स मॉडर्न इंडिया से हमें आइडेंटिफाई हुए हैं. दिस इज द मेजर फोकस ऑफ द यूपीएससी. व्हेनेवर यू आर एंटरिंग द मार्च एंड, जहां पे आप लोग सब पूरा कंप्लीट करेंगे, तो उसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा कंप्लीट की हाँ ये टॉपिक्स मेरा बचा है, ये टॉपिक मेरा पेंडिंग है, ये मेरा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे मुझे डाउट हुआ था क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने में, और ये मुझे बुक से देखना था एट दैट टाइम आई एम अटेम्प्टिंग द पेपर इन द क्लासरूम, आई गॉट इट रॉन्ग, क्योंकि लिंकेज नहीं बन पाई. व्हेनेवर यू अटेम्प्टिंग द टेस्ट सीरीज अकॉर्डिंग टू दिस, तो लिंकेज वाला एरिया भी आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा कि स्मार्ट गैस पॉलिटी में 100% श्योर जा रहा है, मॉडर्न इंडिया में 50% जा रहा है, ज्योग्राफी में 70% जा रहा है, साइंस टेक में जा ही नहीं रहा, तो आई विल स्किप द साइंस एंड टेक. वहां पे स्मार्ट गैस या ब्लाइंड गैस पे मैं सोचूंगा लगाने से पहले. सिमिलरली इन द केस ऑफ एनवायरमेंट वेयर आई एम अटेम्प्टिंग द 50 to 60% क्वेश्चन, तो उस 50 to 60% क्वेश्चन में मेरा स्मार्ट गैस कितना वर्क कर रहा है, बिकॉज एनवायरमेंट इज दैट पार्ट, वहां पे आपके लिए सिंगल सोर्स नहीं है, यू शुड डिपेंड ऑन द करंट अफेयर्स एंड द बेसिक नॉलेज. तो वहां पे आप 60-70% से ज्यादा अटेम्प्ट करने का रिस्क नहीं ले सकते, और उस 60-70% में आप कितना करेक्ट कर रहे हो, दैट विल अंडरस्टैंड फ्रॉम द टेस्ट सीरीज कि आपका स्मार्ट गैस कितना वर्क कर रहा है, ब्लाइंड गैस कितना वर्क कर रहा है, कॉन्फिडेंस आपका कितना है. तो दिस इज द एरिया फॉर 2010 to 20. उससे पहले का देख लेते हैं एक बार क्या है. दिस वाज द ट्रेंड फ्रॉम द 1999 to 2009 कि हाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग. इफ आई कैन से 2009 to 1999 to 2009, on an average there were 15 questions. On an average there were 15 questions, almost double. If I can say from the 2010 to 2020 there are 8 questions, but in 1999 to 2009 almost like a double question, 14 to 15 questions the UPSC were asking, and the area is also changing. The scenario before 1857, advent of the Europeans, if we see the 10 to 20 they're asking the literally 1 question 2 question, and the trend is seen in the 21 and 22 paper. But at that time, on an average, 1 to 2 questions were in the paper in each and every year from the advent of the Europeans. Now they are repeating this trend also. Revolt of the 1857, the favorite area at that time of the UPSC. 2000 to 2010, the 1857, the most favorite area of the UPSC, the 1857 revolt. Then the struggle for the Swaraj. ये area अभी increase हुआ है, but at that time this was the lesser in number. Similarly, the intimation of freedom, I can say the area time period between 1929 to 1940. ये उस टाइम पे भी इंपॉर्टेंट था और अभी भी इंपॉर्टेंट है.
तो अगर आप देखेंगे कि थीम जो यूपीएससी की है, थीम सेम है, लेकिन पूछने का पहले दे आर लाइक रिपीटिंग द साइकिल। पहले जिन टॉपिक्स पे फोकस किया 2000 में, 2000 से पहले, नाउ दे आर अगेन फोकसिंग इन द 2020, 2021, 2022। द सेम ट्रेंड यू कैन विजिबल इन योर मेंस पेपर। आई एम एनालाइजिंग द मेंस पेपर, the time period between the 1990 to the 2005, the themes, the topics they're asking, the same are repeating in the after the 2017. So this is the importance of the previous year question analysis. कैसे उसको एनालाइज करना है, कैसे टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको देखना है, कैसे स्टेटमेंट फ्रेमिंग है, कौन सा एरिया ग्रे एरिया बुक से जहां से कभी कुछ पूछा ही नहीं है वो मार्क करना है। तो इसीलिए बोला जाता है कि पेज टू पेज कभी कोई बुक नहीं पढ़ना है। यू नीड टू एनालाइज फर्स्ट द क्वेश्चंस एंड देन यू गो अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ द यूपीएससी पेपर। सिमिलरली इफ आई कैन सी द एक्ट एंड द न्यूज़पेपर आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। There are 26 questions in the 10 years, means on an average I can say the 3 questions. But now on an average I can say 1 question to 2 questions. So at that time the topics were the same, but the weightage are changed and the total question were 14 to 15. But now the total question is 8. We can say कि 8 question on an average आ रहे हैं. Similarly, if we can see in the graphical methods, तो यहाँ पे आपको दिखेगा scenario before 1857 क्या था, advent of Europeans. In 2020 it was 4-5%, but here it's gone to 12%. Means 1 to 2 question each and every time confirmed there. Similarly, this area, revolt of 1857, alternate year में पूछा है 2016, 17, 18, 19, but 19 के बाद नहीं आया है. But at that time 1 to 2 question from the revolt of 1857. Similarly, the Congress session से question है, Viceroy से question है, Act से question. If you see, after 2022, Viceroy is contributing only the 1%, but here is contributing the 9%. So यही आपको आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड्स कैसे बदल रहे हैं, फोकस कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर पे जाना है, किस तरीके से हमें बुक्स को पढ़ना है, एंड व्हाट आर द मेजर हाइलाइट्स ऑफ द पेपर, कैसे ट्रेंड्स चेंज हुए, क्या टॉपिक हुए. इसलिए इफ यू सी योर प्रैक्टिस टेस्ट, आई एम कवरिंग द टॉपिक्स दैट्स आर इवन आस्क्ड इन द 90-80. It's because you have an idea which are the major important topic for the UPSC, what are the major important for the your examiner, उसका focus कहाँ पे किस topics पे हो सकता है. So in your practice mostly you are getting the PYQ. Out of 50 question you are getting 25 to 30 question of the PYQ on some similar topics, और उसमें trends आपको दिखेगा भी. So it's become important, आपको उसको attempt करना है उसी तरीके से जो आप लोग देख रहे हैं कि हाँ ये ट्रेंड है, उसी ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग आपको अपना नजरिया चेंज करना होगा पढ़ने का. So it can be the things. If you see the after the 1979 when we are not born, 1979 to 1998, the बहुत सारे अब 95 के बाद के born नहीं हैं सब. तो उस टाइम पे the Advents and the Revolt of 1857, 3 questions from Revolt, 2 questions from Advent, and toward the achievement of freedom was the very less coverage. Freedom struggle, again it's a universal topic we can say. उस टाइम से अभी तक it's a universal topic. Every time 1 or 2 question you will find from the during the freedom struggle. If you see the newspaper and the organization, 28 questions. Now it's a 7-8 question in 10 years. Means the 3 question was there each and every time from the newspaper. तो आप लोग कहते हैं ना कि न्यूज़पेपर रैंडम आ गया. अगर लास्ट 40 ईयर के न्यूज़पेपर लर्न कर लोगे तो कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा. जो यूपीएससी ने पूछा है उन्हीं से घुमा फिरा के सब कुछ आता है. इट्स नॉट लाइक कि रैंडमनेस नहीं है, बस आपको एग्जाम को देखना है कि क्या पूछ रहा है, क्या पहले पूछा है, उससे रिलेट करना है आपको. सिमिलरली इफ आई कैन सी इन द ग्राफिकल मेथड्स, तो यहाँ पे वेटेज 4% हो गया. सिनेरियो बिफोर 1857 पर्सनैलिटी की वेटेज बढ़ गई है, न्यूज़पेपर बुक्स की वेटेज बढ़ गई है. सिमिलरली द कांग्रेस सेशन एंड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एरियाज इंक्रीज्ड, एंड एट दैट टाइम द ऑन एन एवरेज क्वेश्चन वर 18 फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री. So it's a declining trend, we can say. It's a declining trend. From 1979, it's almost the 16-17 questions. Then it's moved to the 14-15. In 20 years, it's become a stability. कि 14 questions तक रखे. But now we are comes to the 8 questions. So this is a trend. इसी के according आपको subject को weightage भी देना होता है. We can say अभी 8 है, तो maybe 10-12 maximum limit रहेगा. इससे ऊपर तो जाएगा नहीं. हमें topics का भी पता है. We know which are the important topics, which are the important area. Advent of European पे ज्यादा focus है because already there are the many questions from the time period 1920 to 1940. So अभी पहले का time period become the more important. So this is the complete learning of the modern India, how you will go in the modern India.
कैसे जाएंगे, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, what are the major themes of the modern India, what are the major topics that UPSC is asking, and what are the major sources